I thank the president of our esteemed organization, state organization, Dr. Santosh Kadam, Secretary Dr. Awad sir, President of Nanded IMA, Dr. Kotkar sir, Dr. Rahul Lavekar sir, Dr. Tagadpalle sir, and all the entire committee for giving me this opportunity. Actually, dealing and reporting print and electronic media is my topic, which I have presented a lot in many conferences since 2018. That I was expecting, लेकिन मेरा पेपर चेंज हो गया इधर आते आते एनाटॉमी लिखने आया जूलॉजी दे दिया तो ठीक है और उसमें भी पेपर जल्दी नहीं मिला तो वॉट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड अ न्यू स्लाइड रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक्स एंड टॉपिक इज बिग but hope you give a little more time to me at least and Dr. Narayankar also फोटो लो बराबर से सोशल मीडिया पे डालना है तो बीवी बोले कि इतना दूर गया तो प्रेजेंट किया कैसे आ गया. See, I have started with gynecologist because there was a ACOG study done long back in 2010 about what impact the social media makes on the doctors and how doctors respond with the social media, because that time Facebook, Instagram was not there, Facebook had just come and they were studying कि इसका क्या impact doctors पे हो जाएगा. तो ACOG का ही सब जब मैंने बनाया तो ACOG का ही डाटा था और there was a data from South African medico legal forums. So those two data I utilized for preparing this slide. After that, now the new, just now Utture sir presented, a draft regulation about how the doctor should behave on the social media has been now come by the NMC in 2022, which has been abeyance. It is not implemented, but is there. So today or tomorrow वैसा कुछ आ सकता है इसलिए वो भी मैंने इसमें लिया है. तो जो इसके है गायनेकोलॉजिस्ट का जो फोरम है उसमें क्लियर कट चीज़ें हैं बट जो मेडिको लीगल फोरम है व्हाट दे हैव डिस्क्राइब्ड व्हाट एक्टिविटी बाय यू ऑन द सोशल मीडिया हैज़ व्हाट रिस्क vis-a-vis medical legal problems. So that way it will go. So first of all, I'll go in the first slide. Many gynecologists when asked in the interview taken by, it was an interview method of study. There are different methods of study. Interview होता है, कोई अपना questionnaire method होता है. इस तरीके से interview method से उसका study किया गया, doctrinal method of study. In that the gynecologists were actually interviewed physically and they were asked कि तुमको social media communication patients के साथ करते हो क्या? तो many were reluctant. There are serious concerns of liability and potential exposure to litigation whenever one is on the social media, especially a registered medical practitioner. Now these things can be discussed in two heads. One is liability, another is the patient-doctor relationship. Patient-doctor relationship is something which is very important, but consumer में जब तक patient-doctor relationship established नहीं होती है तब तक केस आगे ही नहीं बढ़ती है. तो यहाँ पे होती है नहीं होती है और होती है तो कैसे होती है ये चीज़ें हमको देखना है. लायबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ ऑनलाइन एक्सपोजर इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग विच कैनॉट बी डिस्कस इन वन गो बट आई विल ट्राई टू टच इट लाइक स्मॉल इन द स्मॉल मैनर. इट इज़ नॉट वेल इस्टेब्लिश. लायबिलिटी किधर भी आ सकती है. किसी पेशेंट को हमने आंसर किया है कैसा हुआ पेशेंट को ये एक्चुअल हुआ मतलब सत्य घटना आहे. एक पेशंटला मार लागला क्रश इंजुरी झाली बोटाला. मग त्याने डॉक्टरला फेसबुकवर विचारलं की क्रश इंजुरी झाली काय करू तर मला काय नाही होतं पॅरासिटामॉल घे टीटी घे ठीक होऊन जाईल. मग ते पेशंट घरी बसले पॅरासिटामॉल टीटी घेतलं 15 दिवसांनी जास्ती झालं ते जास्त झाल्यानंतर ते सर्जनकडे झालं ॲम्प्युटेशन झालं त्याचं. ॲम्प्युटेशन झाल्यानंतर तिने लायबिलिटी फॅक्टर आला की डॉक्टरने मला जर बरोबर सांगितलं असतं सर्जनला दाखव किंवा फिजिकली येऊन दाखव तर मी कदाचित दाखवलं असतं पण डॉक्टरने मला सांगितलं काही होत नाही म्हणून मी घरी बसले अँड बिकॉज ऑफ दॅट आय लॉस्ट माय फिंगर. सो सच लायबिलिटी वन्स यू ॲडवाइज समबडी देर इज अ लायबिलिटी. Another is doctor-patient. Statutory laws which are applicable to the factual communication, they are applicable to the virtual communication. It is as simple as that. हम लोग पेशेंट हमारे डोर में एंटर करता है तभी कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है. वैसे ही आपने फेसबुक पे किसी को एडवाइस किया व्हाट्सएप पे किया कॉन्ट्रैक्ट आपका इस्टेब्लिश हो गया वेदर द पेशेंट हैज़ पेड मनी और नॉट बिकॉज ही कैन से हैड प्रॉमिस टू पे द मनी. नाउ दिस इज अब ये चीज़ें धीरे धीरे आ रही है अपने पास. ये बताने के लिए मैंने ये एक दिस इज़ अ नोटिस गिवन बाय तेलंगाना मेडिकल काउंसिल टू वन हॉस्पिटल. उन्होंने क्या नया हॉस्पिटल एक बड़ा फोटो लिया उसका पूरे ट्रस्टीज खड़े रहे और उन्होंने फोटो डाला सब तरफ और बोला कि प्लीज़ कम. दे इन्वाइटेड द पेशेंट्स इन फैक्ट द पोटेंशियल पेशेंट्स. इट इज़ ट्रू और नॉट तेलंगाना पीपल माइट बी अटेंडिंग बट इट वॉज सर्कुलेटिंग. ऑथेंटिसिटी कैनॉट बी गारंटेड बट इट वॉज सर्कुलेटिंग इन द डॉक्टर्स फोरम्स आर टेकन फ्रॉम दैट फ्रॉम द दिस थिंग. तो इट अपीयर्स ऑथेंटिक एंड दे हैव सेंड द हॉस्पिटल को उन्होंने नोटिस भेजा है कि यू आर डन एंगेज इन एडवर्टाइजिंग. सो काइंडली अटेंड एंड explain yourself, otherwise they are free to take the action on the doctors who are responsible for advertising. Now conduct of RMPs on the social media, as I say, the National Medical Council guidelines given by the EMR board are in draft stage which has been put in abeyance because of the efforts taken by IMA again. But those guidelines have said broader principles of medical ethics. ये सब 11 पॉइंट है वो लेकिन उसमें जो मेन है बताऊंगा मैं. The broader principle of medical ethics should guide use of social media by RMPs. One point says it is a direct copy of what they have given. RMP need to distinguish between telemedicine consultation and social media.
As discussed previously in the previous lectures by various luminaries, it is clear that now telemedicine, though it doesn't have a statutory law in our country, the notification was made by IMC, then IMC, during the period of COVID. उन्होंने कहा था कि टेलीमेडिसिन एंड गाइडलाइंस वर गिवन, इट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑल्सो ऑफ एनएमसी. तो इसलिए अभी टेलीमेडिसिन इज लीगल इफ यू फॉलो देयर गाइडलाइंस, बट कंसल्टेशन ऑन द सोशल मीडिया इज नॉट लीगल. So one should be able to differentiate between the two and then go for the virtual consultation. All written and visual communication should be truthful, respectful and professional. RMP should not post patients' photographs or scan images on the social media. Once the image is posted on the social media, it becomes a data and that is owned by the social media company. It is not owned by the patient also. Doctor also कल को retrieve करना है, हम भी नहीं कर पाएंगे और कोई भी उसको ये कर सकते. It becomes in the public domain. सो सीटी स्कैन जैसा होता है, प्लास्टिक सर्जन पोस्ट करते हैं बिफोर आफ्टर, है ना, नोज करेक्शन किया बिफोर आफ्टर, तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस एक्टिविटी. फॉर्चुनेटली अभी द गाइडलाइंस आर इन एबेंस. अगर वो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हो गए तो इट विल बी वायलेशन ऑफ द इथिक्स ऑफ द अवर प्रोफेशन एंड देयर कैन बी वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग द इवन लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड. RMP behavior on the social media towards his colleagues should be guided by the general principles of medical ethics. What is ethics? Ethics is the branch of moral philosophy that deals with systematizing, defending and recommending the concepts of right and wrong conduct. Means अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें फैसला करना, ये ethics है. Etiquettes क्या है? Etiquettes is the behavior. बोलते हैं ना etiquettes नहीं, अपने को कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी उसको softly behavior को उसको respond करा, that is etiquettes. So both things should be followed whenever you are behaving with our colleagues and as well as our patients. RMP should not be directly or indirectly indulged into purchasing likes or followers और पेइंग मनी सो दैट सर्च एल्गोरिथम्स लीड टू देयर. मैं जैसे सर ने बताया मॉर्निंग में कि हम लोग जेडी पे जाते हैं तो 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट अराउंड इन नांदेड़, फट 4-5 नाम आते हैं, उसमें 2-3 एक्चुअली बहुत समय पे ऐसा होता है कि वो पेड होते हैं, दे आर स्पॉन्सर्ड. सो दैट इज बीइंग इंडल्ज नाउ बिकॉज द गाइडलाइंस आर इन एबेंस. गाइडलाइंस आएंगे तो शायद वो कर नहीं पाएंगे हम लोग, अगर करेंगे तो हमको उसको वी हैव टू फेस द हीट. RMP should not request or share patients' testimonials or recommendations or endorsements in the view of social media. Testimonial topic दिया है already, तो in the last slide, if the luminaries permit me, I'll just say about the testimonials. RMP should refrain from sharing images of healed and cured patient, as I already said. पहले का और अब का. अभी ये है guidelines given by the NMC. अभी इन जनरल मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो लायबिलिटी फैक्टर आता है, एक तो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप आती है. Legal definition of patient-doctor definition relationship has been defined in statute and as well as time and again by various court judgment right from the apex court. The definition of the patient-doctor relationship has been defined in various judgments. It is supposed to be a fiduciary relationship. Fiduciary means क्या, जैसा मदर का रिलेशनशिप होता है बच्चे के तरफ, आई जसं आपल्या मुलाबरोबर रिलेशन ठेवलं, फ्युडिशियरी आहे, तो चूक केलं तरी आई त्याला माफच करते, करतच जाते. तर तसल्या प्रकारचे रिलेशनशिप हे पेशंट डॉक्टरचे असं आपल्याला ज्युडिशरी आपल्याकडून एक्सपेक्ट करतात. सो आता यू इमेजिन, मतलब पेशेंट कुछ नहीं भी किया है, पेशेंट ने कंसेंट भी नहीं दिया है, पेशेंट ने गलती भी की है, तो भी अल्टीमेटली इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर इट. एंड टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट इज लाइक ट्विस्टिंग. द लिटरल मीनिंग ऑफ टॉर्ट इज ट्विस्ट. सो टॉर्ट इज अ सिविल लायबिलिटी. सो वी कम अंडर द सिविल लायबिलिटीज मेनी अ टाइम्स अनलेस द पेशेंट इज डाइड और वी हैव डन अ वेरी ग्रॉस नेग्लिजेंस, और हम लोग कुछ नार्कोटिक के इफेक्ट में ऑपरेशन किया और कुछ ऐसा किया तो ही, अदरवाइज और रॉन्ग फुट पे ऑपरेट किया. अनलेस वी डू दैट वी कम अंडर टॉर्ट. डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे कॉमनली एप्लीकेबल एक्ट है अपने पूरे लाइफ में. अभी सर ने मुझे फ़ोन किया, कोटकर सर ने, सर आप टॉक देने को आओगे क्या? मैंने बोला सर आऊँगा. उधर कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो गया. इट इज़ ओरल कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली द पेशेंट एंटर्स इन माई क्लिनिक, कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश. सिमिलरली पेशेंट आस्क ऑन द फेसबुक, फ्रेंड है पेशेंट, मुझे पूछता है डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी है, मेरे को एनोमली है, मैंने देखा ही नहीं, एंटी स्कैन बोला अबॉर्शन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो गया. सो द इंटरेक्शन ऑन ऑनलाइन सोशल मीडिया अट्रैक्ट्स वेरियस IT सेक्शंस ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, IPC 67, 65, बहुत सारे एडवोकेट्स इधर बैठे, तो वो एप्लीकेबल है कि वहाँ पे कुछ अगर अपने पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल है. मेनी टाइम्स हम लोग बच्चा लेते हैं डिलिव्हरी, खास करून 1 जानेवारीला भरपूर सीझर झाले, सगळ्यांनी बाळ घेऊन फोटो टाकले गायनेकोलॉजिस्टने. सो वेदर द बेबी वॉज कवर्ड और नॉट, इफ द बेबी इज नॉट कवर्ड इट कम्स अंडर पॉक्सो एक्ट. किंवा तो नेकेड बेबी हम लोग फोटो नहीं दिखा सकते. तो
नेकेड बेबी वो बच्चा ही हो गया ना डेफिनेशन के हिसाब से, उसका नेकेड फोटो दिखाना इज अ इनडिसेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट. वी कैन बी डॉक्टर सिटिंग हियर, एडवोकेट इज सिटिंग, ही कैन करेक्ट मी. So such things we are unknowingly violating, and ignorance is not innocence in any judicial system and not in the Indian judicial system also. So one should be aware of things. For that only such conferences are organized occasionally, frequently. Doctors need to be cautious regarding advising somebody who already is not your patient, that I already told. The response given on the Facebook Messenger to a Facebook friend who is not already your patient may in legal parlance be construed as establishment of doctor-patient contract. Means आपने advice किया मतलब contract establish हो गया. Now they have given certain online behavior risks which I will go in short because I have to tell other things also. Online communication with the established patient, already I told you it is as per as the factual consultation. Virtual and factual are same as per the legal aspects are seen. Now electronic record. किसी पेशेंट को मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर एडवाइस कर रहा हूँ तो वो प्रेसाइजली इट गेट्स इस्टॅब्लिश. बाद में मैं यू टर्न नाही ले सकता हूँ. अरे ओपीडी में बोल सकतो नाही मला आठवत नाही असं काही बोललेलं, पण तिकडं नाही म्हणू शकत का, तिकडं तर रेकॉर्ड इस्टॅब्लिश होतो. म्हणून तिकडे बोलताना यू शुड बी अगेन मोर कॉशियस ॲज कम्पेअर टू वॉट यू आर टेलिंग इन युअर क्लिनिक. इट कॅन बी अगेन्स्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज इट गेट्स प्रेसाइजली इस्टॅब्लिश्ड. Online communication without established doctor-patient relationship is a high-risk behavior according to the Medical Legal Forum of South Africa, and it is established that it is recommended the doctor not to answer the specific medical problem-related questions to the patients with whom the doctor-patient relationship has not been established. कोई दूसरे का patient है उसमें अपना टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं. In short, health team communication, public communication should be avoided. अभी health team है, डॉक्टर्स का ग्रुप है, वो कुछ टीम उनका भी ग्रुप्स होता है, तो दैट कोई डिस्कशन गायनेकोलॉजिस्ट के अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स है, व्हाट्सअप ग्रुप्स है, उसमें और लोग होना ये रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज पब्लिक कम्युनिकेशन शुड बी अवॉइडेड. पेशेंट्स डाटा इज अ प्राइवेसी के इश्यूज आते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड कॉस्मेटिक सर्जन्स मोस्टली बिकॉज दे हैव टू गिव रिजल्ट्स, तो फोटोग्राफ पोस्ट करते हैं कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा था. सो दैट हेल्प्स टू बूस्ट देयर प्रैक्टिस, बट वन शुड बी वेरी कॉशियस बिकॉज प्रैक्टिस बूस्ट करते करते पता चला उन पर केस हो गई, जितना कमाया उधर डाल दिया. Maintaining a professional social media profile is a low risk activity. Social media profile can be kept and it is a powerful tool. It can be kept on the media profile. Professional and social media two है. Professional media profile a low activity है, low risk activity है. मतलब as a Dr. Rajendra Tiwari, if I am posting and I am posting about the medical cases and all, it is okay. If I am individually I am posting only as Rajendra Tiwari, not as a doctor, it becomes a personal media profile. Again, it is a dangerous thing. 80% adults use internet according to the data given in 2010. अभी ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूएसए का डाटा है. 60% लूज belong to at least one social media networking site. Posting personal information like travel photograph, personal information. लोगों का बहुत, अभी मैं आया ना, मैं बोलूँगा नांदेड़, आई प्रेजेंटेड सो एंड सो. ठीक है, ये तो ठीक है, मैं पेशेंट, मेरा डिलीवरी पेशेंट छोड़ के घूमने गया मनाली और वहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ कि एंजॉइंग आइस इन मनाली, और कल को पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो गया, बोले मेरे को कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, मेरे डिलीवरी के टाइम पे तो घूमने गया. बराबर है, तो बेटर यू अवॉइड पोस्टिंग एज वापस आने के बाद भी कर सकते हो, और नहीं किया तो भी एन्जॉयमेंट होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट करना ही चाहिए, और अब करने के बाद ही आप एंजॉय करते हो दूसरे को दिखाने के बाद, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो इट इज़ अ मॉडरेट रिस्क एक्टिविटी. Personal interaction with the patient on social media. 75% of the gynecologists in that actual interview method, they denied friend request from the patient. It's safe to deny friend request from the patient. Rather you prepare your this thing page and ask them to follow. That is a better according to the medical legal agencies. It is better to create Facebook page and encourage them to follow it. ACOG physicians use their own discretion and should be guarded regarding interactions on various online platforms, especially with the patients. Appropriate privacy setting needs to be learned and used on the whichever sites you are using. Online physician ratings. ये अभी भी चल रहा है कि फिजिशियन का रेटिंग, अब जैसा भी सवेरे बताया, गूगल पे भी अपना रेटिंग होता है, फिर जेडी पे होता है, तो ये रेटिंग भी परचेस किए जा सकते हैं, अपना वेबसाइट पे रेटिंग परचेस किए जा सकते हैं. देयर आर एजेंसीज अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो. दैट टाइम व्हेन आई प्रिपेयर्ड इंडिया यूएसए, देयर वाज अ हेल्प एजेंसी. इट इज़ लाइक अ दोधारी तलवार, डबल एज स्वॉर्ड. आज पैसा मिल रहा है, आपका रेटिंग बढ़ाएंगे, कल को डिस्प्यूट होगा, अपना रेटिंग नीचे भी लेके आएंगे. सो हाउ टू यूज़ इट, वेदर टू यूज़ इट और नॉट. जैसा प्रैक्टो ने किया, शुरू में प्रैक्टो वॉज वेरी फ्रेंडली विद द डॉक्टर्स. नाउ प्रैक्टो क्या करता है, नारायणकर सर के पेशेंट, मुझे फॉर्चुनेटली नारायणकर सर डरमेट है, लेकिन मैं भी डरमेट हो तो मेरे पेशेंट उधर, उनके पेशेंट इधर भेजता है. वो बोलता है अभी वो नहीं मिल रहे, आजकल रहते नहीं, वो IMA का काम कर रहे, तो बहुत घूमते रहते हैं, अभी ये डॉक्टर तिवारी है, उधर जाओ. तो दिस टाइप ऑफ टैक्सेस दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टो नाउ. सो वो डबल एज स्वॉर्ड है. हाउ टू यूज़ इट, नॉट टू यूज़ इट, वन शुड इंट्रोस्पेक्ट, अपनी कितनी ज़रूरत है और वो हिसाब से इसमें यू शुड पुट योर फुट इनटू इट. Building professional and scholarly networks on social media is a powerful tool. It develops in connectivity. It helps in disseminating the scholarly knowledge. See, the social media is like a matchstick.
With the matchstick, we can put anybody's house also on fire, or with the same matchstick, we can light a candle also. So how to use it is our prerogative. So building professional scholarly network is definitely a powerful connectivity. It helps in disseminating the scholarly knowledge, helps in upgrading one's knowledge, helps in peer group review. So conclusion of social media used by the doctors, what I have concluded in a small slide is, digital and social media are becoming necessary elements nowadays for offering up-to-date results to the patients and upgrading medical practice. Knowing how to monitor your digital presence, it is important to have a digital presence nowadays, and one should know how to monitor it also. किसी ने bad use दी है, वो monitor करना बहुत ज़रूरी है. And practicing low risk behavior will substantially assist you in limiting your professional online exposure to liability. Whatever liability and exposure can decrease if you are prudent to monitor your digital presence, as well as you are following the guidelines given by the NMC as well as by the various medical legal forums. Now another topic given to me by sir is advertising by RMPs. Again, there is a clear-cut guidelines of 2002. Conduct etiquettes and ethics regulation 2002. EMR board has also come up with the same guidelines. बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, सब ज़्यादा फ़र्क नहीं, इसलिए मैंने 2002 अभी जो एक्टिंग गाइडलाइंस है वही इसमें लिए हैं. Soliciting the patients directly or indirectly by a physician, by a group of physicians or by institutions or organizations is unethical. मतलब Dr. Tiwari is a very good doctor or his hospital is a very, please come to him. That kind of advertise we cannot do. Soliciting a patient is not permitted. A physician shall not make use of him or her. See how complexly they have written. A physician shall not make use of him, her, or his or her name as a subject of any form or manner of advertising or publicity through any mode, either alone or in conjunction with others. मतलब खुद और किसी को नॉन मेडिकल लोगों को लेके भी नहीं कर सकते. इसमें ये तो पहले से है. आपको अगर याद रहेगा, व्हेन आई वाज लाइक चाइल्ड, श्रीराम लागू वाज, एवरीबडी नोज हिम, ही वाज अ डॉक्टर ऑल्सो एंड ही वाज एक्टर ऑल्सो. उन्होंने एस्पिरिन की एडवर्टाइज दी थी, तो फॉर दैट हिज मेडिकल MMC रजिस्ट्रेशन वॉज सस्पेंडेड फॉर 1 month. सो वी आर नॉट सपोज टू एडवर्टाइज एनी प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Physician shall not give to any person, whether for compensation or otherwise, any approval, recommendation, endorsement, certificate. वही है, कोई प्रोसीजर है, इंस्ट्रूमेंट है, या फारच चांगलं इंस्ट्रूमेंट है किंवा फारच चांगलं ड्रग है, डायरेक्टली वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव द एडवर्टाइज और एनी वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर नॉट सपोज टू एंडोर्स एनी प्रोडक्ट, एनी मेथोडोलॉजी, any instrument or any for that product for that matter. A physician shall not boast cases, operation cures की मी अशी सर्जरी केली, एवढा मोठा फायब्रॉइड काढला की एवढं चांगलं नी रिप्लेसमेंट केलं. That boasting is not actually permitted. Physician in lay press. How a physician should behave in lay press? A physician should not contribute to lay press articles, give interviews regarding diseases and treatments which may have the effect on advertising himself. Means ऐसी कोई इंटरव्यू की जो उसका महिमा मंडल हो रहा है और वो पेशेंट्स को इनडायरेक्टली प्रमोशन कर रहा है, दैट इज़ नॉट परमिटेड. अदरवाइज गाइडिंग पेशेंट्स अबाउट द डिसीजेस, सोशल साइंस, हेल्थ साइंस, हाइजीन, दैट इज़ परमिटेड. लेकिन ऐसी कुछ इंटरव्यू, ऐसा कुछ टॉक दे रहे हैं जिससे खुद का बहुत बड़ा ये कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, वैसा इट इज़ नॉट परमिटेड. Healthcare institutions and advertisement. Institution run by a physician for a particular purpose, such as maternity home, nursing home, private hospital, rehabilitation center, any type of training institution may be advertised in lay press. But कैसे advertise करना है? Only it should contain not more than the name of the institution, type of patients attended by that institution, type of training and other facilities offered and the fees. क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और कितना फीस ले रहे हो, इससे और आगे जाके कुछ उसमें एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है. अभी ये 7 चीज़ें हैं जो सर ने भी बताया. अभी NMC का जो आया EMR बोर्ड का, उसमें भी ये 7 चीज़ें. सिर्फ यहाँ पे उन्होंने समय सीमा नहीं दी है, यहाँ पे वहाँ पे समय सीमा 3 महीने तक कर सकते हैं. तो ये 7 चीज़ें तो सबको पता होनी ही चाहिए. ये 7 जगह पे हम लोग लीगली एडवर्टाइज कर सकते हैं. 1 इज़ ऑन स्टार्टिंग प्रैक्टिस, चेंज ऑफ टाइप प्रैक्टिस. समझो मैं गायनेक को ऑब्स्टेटिक बंद कर दिया तो मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ, अभी मैंने ऑब्स्टेटिक बंद कर दिया है. या मैं इवनिंग प्रैक्टिस करता नहीं था, अभी इवनिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ या बंद किया. ऑन चेंजिंग एड्रेस, ऑन टेम्पररी एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी, ऑन रिजम्पशन ऑफ अनदर प्रैक्टिस, ऑन सक्सीडिंग टू अनदर प्रैक्टिस एंड पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ चार्जेस बढ़ा दिया. ये इससे 3-3 महीना, तो इसमें तो आप 2 साल एडवर्टाइज कर सकते हो. हर एक को 3-3 महीना है, हर एक को थोड़ा बहुत चेंजेस करके इफ यू वॉन्ट यू कैन एडवर्टाइज, इट इज लीगल. 50 रुपये कम करके भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो की 50 रुपये माझी फीस कमी झाली, बरोबर आहे ना. म्हणजे देर आर लूपहोल्स इन एव्हरी गाईडलाईन्स. So basically we cannot create a good person by making laws.
वो अंदर से आना चाहिए। लॉ बना के किधर कोई साधु पुरुष पैदा नहीं कर सकते, अपन ना बना सकते। गाइडलाइंस फॉर लेटर हेड एंड साइंस, अगेन देयर आर गाइडलाइंस की लेटर हेड के गाइडलाइंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैं सिंपल बताता हूँ तो टाइम का बेल बज गया है, अभी मेरे को एडवर्टाइज का हो गया। इसमें बेसिकली लेटर हेड पे जो अपना साइन बोर्ड रहता है बाहर, उस पर अपना फोटो वगैरह अलाउड नहीं, और डिसप्रोपोर्शनेट साइन बोर्ड अलाउड नहीं, और उसमें जहाँ पे अपन प्रैक्टिस करते ही नहीं वहाँ पे अपना साइन बोर्ड अलाउड नहीं है। ऐसा मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एयरपोर्ट के पास साइन बोर्ड लगाया, दैट इज़ नॉट परमिटेड। डिफेमेशन, अभी डिफेमेशन एक बोलता हूँ, टेस्टिमोनियल को ऑलरेडी सर ने बताया। डिफेमेशन इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट समवन एंड हार्म देयर रेपुटेशन। पेशेंट कैन डिफेम डॉक्टर्स बाय पोस्टिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देम ऑनलाइन। बेसिकली रेटिंग करने के जेडी का या गूगल का रेटिंग है, उसके नीचे पेशेंट बहुत बार अपने लिए कुछ मतलब गलत भी या तो डिफेमिंग लिख सकते हैं। सो दैट शुड बी केप्ट, वॉच शुड बी केप्ट ऑन इट। फॉल्स देखो लाइब्रेट पे देते हैं, जेडी पे देते हैं। Now, how to respond? Doctors can monitor the signs of defamation. Basically, one dedicated person should be there if you are really interested in it, कि वो क्या लिख रहे हैं अपने बारे में देखिए, periodically चेक करें, और उसको आंसर तुरंत नहीं करना चाहिए। And there is something known as दिशा, which is Digital Information Safety in Healthcare Act. मीन्स अपने पास जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन पेशेंट का है, that is guided by a law now. If we cannot give that information to anybody, if we give, then we are we have to face the heat. तो वो गाइडलाइन भी अपने को प्रोफेशनली बराबर से, अगर किसी का डिजिटल डाटा हम रख रहे हैं तो वो करना पड़ता है। और पेशेंट ने भी वो डैमेज किया तो डिफेमेशन कैन डैमेज डॉक्टर्स रेपुटेशन विच कैन लीड टू लॉस ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज इनकम। इट इज़ कॉस्टली टू लिटिगेट एज सच। नाउ टिप्स ऑफ ट्रिक्स ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव कमेंट्स, दैट आई विल रीड बिकॉज दिस इज लास्ट but one slide. Regular checkout of the sites like JD, Librate, Yelp, etc., Facebook should be done, and whatever negative has been posted, directly it should not be responded. सर जल्दबाजी में रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। द रेस्पॉन्स शुड बी व्हेरी वेरी डिप्लोमॅटिक अँड इट शुड बी साऊंड व्हेरी हंबल। असं नाही की डायरेक्ट त्याने काय बोललं आपण पण डायरेक्ट रागात काही रिप्लाय केलं तर त्याच्यामध्ये आपलं इमेज जास्ती खराब होते आणि आपला डॅमेज जास्ती होऊ शकतो। नो मॅटर हाऊ निगेटिव्ह कमेंट इज, डू नॉट रिप्लाय इमिडिएटली, गिव्ह अ मेजर्ड रिस्पॉन्ड. If the professional knows the person posting or circulating, then you can directly contact him and try to solve his this thing, why he is aggrieved. We have to understand from him and try to solve it. If one chooses to reply, then the tone should not be condescending, argumentative or rude. अब उन्होंने HIPAA guideline दिया, the same is DISHA in India. They are basically the legal guidelines for how to maintain the digital data of the patient. If a person believes they have been unjustly defamed, it is best to seek assistance from the legal counsel. There may be rules and regulations for responding to defamation. In India, there are 499, 500 IPC sections and corresponding BNS sections are there, for which the 2 years imprisonment तक provision है. But that should be basically difficult क्योंकि prove करना पड़ता है. There is a difference between a opinion and defamation. अब कोई opinion दिया है तो that is not like defaming. So that difference is always there, that one has to prove if one has to go for the. Last is libel and slander. Libel मतलब oral defamation, slander is a written defamation. Sorry, libel is a written defamation, slander is a oral defamation. Already I mentioned the sections. Testimonial already sir told. NMC's draft regulation has clearly told testimonial तो कोई भी पेशेंट अच्छा ही देगा. मैंने पेशेंट का ऑपरेशन किया, वो अच्छा हो गया, बाद में आया, मैं उसको बोला तुम्हाला कसं वाटतंय, तर तुम्ही फार खराब होते, तुम्ही वेळेवर राऊंड नाही घेतला, तुम्ही माझ्या प्रश्नांची उत्तरं नाही दिली, असं तर नाही म्हणणार ना तो म्हणेल नाही डॉक्टर चांगलंच झालं, अजून मला रेकॉर्ड करून माझ्या वेबसाईटवर टाकायचं, अजून चांगलं म्हणेल तो. सो बेसिकली इट इज लाईक कोअर्सिंग द पेशेंट फॉर गिविंग पॉजिटिव रिमार्क. इट कैनॉट बी, इट इज सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग ओनली. अनलेस इट आप सामने खड़े हो तो आपको अच्छा ही बोलेगा कोई भी ना, पीछे मुड़ के क्या बोलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो रेटिंग में जो लिखा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन टेस्टिमोनियल. टेस्टिमोनियल मोर और लेस इट इज लाइक अ marketing only, so it is not permitted by the act. So to conclude, the medical profession is one of the noble profession, and one should take due care to maintain its dignity while behaving on the social media, which is considered as a double-edged sword. As well as now social media election जिता रहा है लोगों को. Social media is like a fourth pillar of democracy now. ऐसा बोलते हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और क्या है, एक तो लेजिस्लेटिव है, एक जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेट है, फोर्थ हाँ मीडिया वही ना, और लास्ट में सोशल मीडिया भी आपका लाइक फिफ्थ आ गया है, हाँ फोर्थ पोल, हाँ फिफ्थ पोल. तो विद दैट आई थिंक आई विल कंक्लूड. थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर एंड स्पेशल थैंक यू नारायणकर सर फॉर परमिटिंग मी बिफोर हिम. थैंक यू.